Good morning everyone. Welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start with the fourth chapter, that is change in the profit sharing ratio among the existing partners. Sometimes your existing partners want to change the profit sharing ratio due to one or the two reasons. Now the profit sharing ratio can be changed in many circumstances. इट कैन बी अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि अपनी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें. इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, इट कैन बी एट द टाइम ऑफ द अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज. Clear? Amalgamation means when two or more than two companies joined hands together in order to earn the maximum profit. Clear? So those are the cases in which the reconstitution can be made. Reconstitution means when there is change in the profit sharing ratio of the among the partners. Clear? These are the types. After that, section 4 of the Indian Partnership Act 1932 states that partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the definition that you have done in +1 also in detail, because this definition will include all the features of the partnership firm. It is not controlled by a single person. It is the relationship between many persons. ठीक है? They agree to share the profits according to the sharing ratio. क्यों? The activities can be carried on by all. हर कोई कर सकता है, या one or two partners can carry out the activity on the behalf of the all. ठीक है कि सबके behalf पे activities की जा सकती हैं. Now, change in the profit sharing ratio among the existing partners. The existing partners may agree to share the profits and loss in a ratio different from the earlier agreed profit sharing ratio. Suppose earlier they were having a profit sharing ratio of 3:2:1. ये profit sharing ratio है ABC की. But after that, due to certain uncertain circumstances, they want to have a change in the profit sharing ratio, and they have decided that their profit sharing ratio is 2:2:1. ठीक है? तो ये जो change हुआ है, दिस इज द चेंज अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जो चेंज होता है उनको हम कहते हैं कि वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. बेटा, in this chapter we are going to cover this syllabus, like determination of sacrificing ratio and gaining ratio, then treatment of goodwill, treatment of reserves, accumulated profit and losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities, and adjustment of capital. We are going to cover these all the aspects in this chapter. Today I am going to deal with only first point, that is determination of sacrificing ratio and gaining ratio. Sacrificing ratio. Sacrificing ratio is the ratio. It denotes that there are some partners who sacrifice for giving extra share to the another partner. That partner is known as a sacrificing partner who sacrifices. ठीक है? Sacrificing ratio क्या होती है? Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partners of the firm forego. It means sacrifice their profit in favor of one or more partners of the other firm. Suppose there are three partners बेटा, A, B and C. ठीक है? वन ऑफ द पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सपोज 4:3:2. इट मीन्स A is getting 4/9 share of the profit, and B is getting 3/9, and C is getting 2/9 share of the profits. Clear? ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बस अब अगर हम बात करें कि सपोज 3 पार्टनर्स थे, तो उनमें से एक पार्टनर जो है, सपोज नेक्स्ट टाइम इसका शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो इसको जो इंक्रीज्ड शेयर है वो कहाँ से मिलेगा? वो अपने ही किसी पुराने पार्टनर से मिलेगा. इट मीन्स वो पुराना पार्टनर जो एक्स्ट्रा शेयर उसको दे रहा है वो क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और ये क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर. ठीक है? बट हाउ वुड वी कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड. Old
ratio minus new ratio. Why do we put this formula? Why do we put old ratio in front of the new ratio? इसलिए क्योंकि पुराने पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं. तो फॉर्मूला इसलिए क्या हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. गेनिंग पार्टनर क्या होता है? गेनिंग पार्टनर का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है. सपोज यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़े तो गेनिंग रेशियो इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इट मीन्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ठीक है, कि जो नया शेयर उसके पास आया है उसमें से अगर हम पुराना शेयर माइनस करें तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारे पास गेनिंग रेशियो हो जाएगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स वो कौन सी रेशियो है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं. लेकिन अगर कोई नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स दैट इज़ अ गेनिंग पार्टनर. क्लियर. और अगर गेनिंग रेशियो में अगर हम देखें, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अगर वो पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स वो गेनिंग है, अगर नेगेटिव आती है तो उसके ऑपोजिट ये क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगी. इज दैट क्लियर? Now let's start with the first illustration. Amit and Sumit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Amit and Sumit दो partners हैं बेटा, एक है अमित एक है सुमित, and their profit sharing ratio is, wait, and their profit sharing ratio is 2:1. It was decided by them to share profits equally with effect from 1st April 2019. Decided to share ratio equally, it means this was the old ratio and this was the new ratio which they have decided now to share in future. Clear? Now they have said calculate sacrificing ratio and gaining ratio. Now if we want to calculate sacrificing ratio तो formula क्या होगा, old ratio minus new ratio. Now Amit's share, अमित की ओल्ड रेशियो कितनी है, देखो 2/3 1/3, दोनों को प्लस कर देते हैं. ठीक है, इसमें भी दोनों को प्लस किया, ये 1/2 1/2. तो न्यू ओल्ड रेशियो इसके कितनी थी 2/3 और जो न्यू रेशियो है उसमें उसका शेयर कितना था 1/2. क्लियर बेटा? नाउ वी टेक एन एलसीएम ऑफ 3 and 2. 3 2s are 6, 2 2s are 4 minus 2 3s are 6. It will become 1/6. It is a positive one. तो पॉजिटिव है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पॉजिटिव है तो इट मीन्स वो सेक्रीफाइस ही है. ठीक है, वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही है. नाउ अगर हम सुमित का शेयर निकालें, सुमित शेयर, सुमित की ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 और न्यू रेशियो क्या है 1/2. व्हेन वी टेक एन एलसीएम it will become minus 1/6. तो it is negative. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर कुछ नेगेटिव जाता है तो उसके उल्टा है, फिर वो सेक्रीफाइसिंग नहीं है, फिर वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग. इट मीन्स अमित इज सेक्रीफाइसिंग 1/6 ऑफ द शेयर एंड सुमित इज गेनिंग शेयर ऑफ 1/6. इज दैट क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन 2 is here. Have a look. Aman, Yatin and Uma were partners and were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. उसमें से उमा रिटायर हो गई and her share. Okay, let's start this question. Just wait. Let's start. Aman, Yatin and Uma. 3 partners are there. Aman, Yatin and Uma. These 3 were the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. 5 or 3, 8, 8 or 2, 10. So this will become your profit sharing ratio. After that they said that Uma retired. इसमें से जो उमा है वो क्या हो गया, रिटायर हो गई. ठीक है ना, तो चेंज तो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकती है, एडमिशन के केस में भी हो सकती है, रिटायरमेंट के केस में भी हो सकती है, तो डेथ के केस में भी हो सकती है. अब उमा रिटायर हो गई है भाई. ठीक है, जब उमा रिटायर हो गई तो उसका शेयर वॉज टेकन ओवर बाय अमन एंड यतिन इन 5:3 रेशियो. तो उसका ये जो शेयर है 2/10 जो उसका शेयर था वो कौन ले गया, वो कौन ले गया, अमन और यतिन. कौन ले गया बेटा, अमन और यतिन. किस रेशियो में लेके गए, 5:3 की रेशियो में, यानी कि 5/10
8 और 3/8 की रेशियो में। इट मीन्स अमन के लिए गेन क्या है, इस 2/10 का 5/8 हिस्सा अमन ले गया, ठीक है ना। तो अमन का अगर हम शेयर्स जो हम टेकन ओवर बाय अमन होगा, उमाज शेयर टेकन ओवर बाय जो कौन ले गया, अमन। उमा का शेयर कितना था 2/10, 2/10 का कितना हिस्सा बोले गया 5/8, 2 4 8, ठीक है 5/40, क्लियर बेटा। और उमा का जो शेयर कौन ले गया, यतिन ले गया। उमा का शेयर कितना था 2/10, उसका कितना हिस्सा वो यतिन ले गया 3/8। इट मीन्स 3/40 हिस्सा कौन ले गया, यतिन ले गया, ठीक है। तो इट मीन्स अमन और यतिन को गेन हुआ। तो गेनिंग रेशियो क्या बनी इनकी, गेनिंग रेशियो बनी 5:3। इनका बेस सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा बेस सेम ना होता तो हम लोग नेक्स्ट आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसका बेस क्लियर करते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 3, इफ़ x, y एंड z वर पार्टनर्स। यहाँ पे मैं कर रही हूँ रजे, लेट्स स्टार्ट। x, y and z were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। 5/10 हो गया, 3/10 हो गया, 2/10 हो गया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। नाउ इसमें केसेस दिए हैं बेटे। तो फर्स्ट केस क्या है, कहता इफ़ z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम x। अगर z एक्वायर करता है 1/6 शेयर फ्रॉम x, अगर x से एक्वायर करता है तो इट मीन्स 1/6 जो है वो x का क्या है, सेक्रीफाइस है। तो उसको हम x के शेयर में से माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। बात क्लियर हो गई है कि वो क्या कह रहा है कि जो z है वो 1/6 किससे लेता है, x से। इट मीन्स x के लिए 1/6 सेक्रीफाइस है। अब उसकी शेयर ये नहीं रह गया, उसका अब नया शेयर क्या हो जाएगा, उसका नया शेयर होगा उसके पुराने शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम न्यू शेयर निकालते हैं ना, न्यू रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस हो जाता है। अगर गेन होता है तो ओल्ड रेशियो में गेन प्लस हो जाता है, क्लियर। तो इसका 1/5 था जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। ये बना 3/10 और y की शेयर क्या था 3/10 ही था उसका, z का 2/10 था और उसने 1/6 उसने लिया था। तो क्योंकि ये गेन हो गया था उसके लिए तो हमने क्या कर दिया, इसको एलसीएम कर दिया। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 5 10, 2 3 6, 5 1 5, 3 1 3, ये 30 आ गया, ठीक। तो 10 3 30, 3 2 6, 6 5 30, 11/30। अब इनको भी 30 करना है आपने। अब ये देखो बेस 30 आया ना, अब बेस इसका 30 आया है, आपने इसको 30 करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, अब बेस, सॉरी राजे इट वॉज बाय मिस्टेक, 1/5 उसका सेक्रीफाइस था तो 1/5 उसका गेन बनेगा, ठीक है ना। 1/5 शेयर लिया ना उसने, 10 और 5 ये 10 आएगी, ठीक। तो ये 2 + 5 2 10 और 2, ये बन गया 4/10, ठीक है बेटा। तो ये रेशियो बन गई 3:3:4, क्लियर। तो ये कौन सी रेशियो आई है, ये न्यू रेशियो आई है। और हम सेक्रीफाइस उसका बताएंगे कितना है, 1/5 इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ x एंड 1/5 इज़ द गेन ऑफ z। Now second case is if z acquires 1/5 share equally from x and y। अब z जो है, दूसरा केस क्या है कि z जो z को मिल क्या रहा है 1/5, इट मीन z के लिए गेन क्या है 1/5, ठीक है। लेकिन वो किससे ले रहा है, इक्वली ले रहा है x और y से। इट मीन्स अगर हम x का सेक्रीफाइस निकालें तो 1/5 का हाफ उसको देना है,
ठीक है, इट बिकम्स 1/10। और अगर हम y का सेक्रीफाइस निकालें तो उसको भी 1/5 का हाफ शेयर देना, तो 1/10 इसका सेक्रीफाइस है। जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो फॉर्मूला है इसका, जैसे x का शेयर निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस उसका सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो है 5/10 और ये देखो 5/10 और उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, इट बिकम्स 4/10। ठीक है, न्यू रेशियो। y का ओल्ड शेयर है 3/10 और उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो उसका शेयर कितना बना 2/10। z का शेयर देखो, z का शेयर था 2/10 और लेकिन उसका सेक्रीफाइस कितना था जो उसने x से लिया 1/10 और y से भी लिया उसने 1/10, तो उसके लिए वो क्या हो गया 4/10। तो उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई वो क्या आई 4:2:4। ठीक है, और ये 1:1 उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्लियर बेटा? जब गेनिंग रेशियो निकालोगे तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये न्यू रेशियो आई है, ठीक है, 4/10, 2/10, 4/10। अब जब x का गेन निकालोगे तो 4/10 में से 5/10 माइनस कर दोगे। ठीक है, गेन निकलेगा, इट मीन्स वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चला गया वो। ऐसे ही आप y का करोगे, ऐसे z का करके आप गेनिंग पार्टनर निकालोगे। क्लियर? नेक्स्ट है केस 3। इफ़ एक्स वाई जेड डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी है। ठीक है, इस केस में उन्होंने क्या किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी है। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। तो आपको अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आप कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, जब गेनिंग रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक बच्चे, ये तो डायरेक्टली गिवन है। केस 4, इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ x। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो कि अगर z जो है गेन करता है, एक्वायर्स मतलब गेन करता है, क्या ले रहा है वो 1/5 शेयर ऑफ x, x के शेयर का 1/5वां हिस्सा z ले रहा है। इट मीन्स x का सेक्रीफाइस क्या होगा, पहले तो हमें x का शेयर पता होना चाहिए। तो x का शेयर कितना था 5/10, 5/10 का 1/5 उसका सेक्रीफाइस है। ठीक है ना बेटा, तो ये बन गया 1/10। ये z में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये z का गेन है। ठीक है, और उसने y से क्या लिया 1/6 ऑफ शेयर ऑफ y। तो y का शेयर कितना था, y का शेयर था 3/10, 3/10 का 1/6 उसने उससे लिया। इट मीन्स y का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, उसका 3 शेयर था, उसका 1/6 हिस्सा वो ले गया। इट बिकम्स 3/20। ये भी जाके z में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये z का गेन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो x का शेयर कितना था 5/10, उसमें से यानी कि ओल्ड शेयर में से उसने 1/10 माइनस किया था क्योंकि उसने उसका सेक्रीफाइस था, 1/10 हम माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 4/10। फिर हम y का शेयर निकालेंगे। y का शेयर कितना था हमारे पास 3/10, 3/10 में से 3/20 उसने उसको दे दिया। ठीक है, हम इसका एलसीएम निकाल के इसका शेयर निकालेंगे। और z में, z का ओल्ड शेयर था 2/10, उसका सेक्रीफाइस उसने कितना किया था, जो x और y ने, x ने उसको सेक्रीफाइस किया था 1/10। जो x के लिए सेक्रीफाइस है वो y के लिए गेन है। उसके बाद फिर y ने जो सेक्रीफाइस किया 3/20 वो z के लिए क्या है, गेन है। तो ये ऐड होंगे, जो गेन होता है वो ओल्ड रेशियो में ऐड हो जाता है तो न्यू रेशियो निकलती है, जो सेक्रीफाइस होता है वो ओल्ड रेशियो में माइनस हो जाता है तो गेनिंग न्यू रेशियो निकलती है। तो इस तरह से इस केस में आप न्यू रेशियो निकालोगे। ठीक है बच्चे, रजे इलस्ट्रेशन 3 we have done. After that I think new cases will be start, that is of accounting treatment of goodwill. So you have to do each and every equation of the sacrificing ratio and gaining ratio that I am giving to you. Do these all the questions, and if you have any doubt you can ask me students. Thank you.